हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कन्याकुमारी ट्रिप, जो कि हमारा 2 दिन का ट्रिप था, उसका एक ग्लिम्स दिखाऊंगा। कन्याकुमारी हम 2 तरह से जा सकते हैं। एक तो बैंगलोर से डायरेक्ट कन्याकुमारी जा सकते हैं, विच इज़ अराउंड 600 किलोमीटर्स एंड 12 आवर्स का जर्नी है। ये ट्रिप है मुन्नार से एंड इट इज़ अराउंड 370 किलोमीटर्स, जो कि 7 to 8 आवर्स होता है। Munnar is a popular hill station situated 1600 meters, around 5200 feet above the sea level. Driving from Munnar to Kanyakumari offers enchanting journey of diverse landscape of the Kerala thing. There are 26 or 27 hairpin bends as we travel through. Road condition is fantastic. As we leave Munnar, mist-clad hills bid you farewell, and the road winds through lush green tea plantation, passing through the clouds, waterfalls, shades of green paint landscape. हवा एकदम crisp है, carrying aroma of tea leaves and different spice trees also. कभी-कभी adding to the landscape, we see colorful flowers dotting the hillsides. As we descend from the Western Ghats, the terrain changes. Rolling hills give away to flat plains, and the vegetation becomes denser with tropical forest and the lining of the road. Once you enter Tamil Nadu, the landscape undergoes another transformation. The road meanders through the coconut groves and the banana plantation, with occasional sight of towering palm trees swaying in the gentle breeze. The road condition is fantastic. There is no traffic and is a pleasure for driving through. You have lots of restaurants, veg, non-veg restaurants, petrol stations, gas filling areas, rest areas, and sometimes you will also see occasional small parks. As we drive closer to Kanyakumari, you see the world's 5th largest wind farm called Mupandal Wind Farm. Mupandal Wind Farm is located in Kanyakumari district and is the largest operational wind farm in the country. Operated by Tamil Nadu Energy Development Agency, it has total installed capacity of 1500 megawatts. The windmill farm features 3000 plus turbines ranging in the size of 200 kilowatts to 1650 kilowatts. The mountainous geography of the surrounding supplies a strong wind, and while driving पता भी नहीं चला कि ये 6 to 7 hours कैसे निकल गया। कन्याकुमारी एंटर करते समय यू हैव टू पे 100 रुपीज़ का पंचायत फी, विच इज़ यूज्ड फॉर एंट्री ऑफ द व्हीकल, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्याकुमारी पंचायत, विच इज़ फॉर क्लिनलीनेस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, एज वी एंटर कन्याकुमारी, लेट मी शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी is also known as earlier Cape Comorin or Land's End of India, and is known for stunning beauty where Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal meet. It's a place for pilgrimage, boasting of Vivekananda Rock Memorial and Tiruvalluvar statue. Kanyakumari is an incredibly lively place, and कुछ interesting facts about Kanyakumari. कन्याकुमारी प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र हुआ करता था। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। कहते हैं देवी कुमारी कन्याकुमारी में भगवान शिव से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। 3rd century BC से 3rd century CE, जो कि हम कहते हैं साम युग में, कन्याकुमारी पांड्या साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तमिल साहित्य में कुमारी कंदम के रूप से मेंशन किया हुआ है। सदियों से कन्याकुमारी में विभिन्न यात्रियों की तीर्थ यात्राओं को आकर्षित किया है। यहाँ पर मार्को पोलो, चाइनीज विद्वान जुआंगजैंग जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी आए थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की यात्रा से पहले विवेकानंद रॉक पर तपस्या किया था। प्री इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी ने 1925 से 1937 में इस क्षेत्र को विजिट किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में कन्याकुमारी का एक विकास हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण हुआ 1970 में, और इसके बाद
पर्यटन एंड टूरिज्म का बढ़ावा मिला। कन्याकुमारी इज ऑल्सो नोन फॉर वाइब्रेंट कल्चर, mix of Tamil, Malayalam and other religion influence. You will find a lot of Bengalis there. The region celebrates various festivals like Chaitra Purnima at Kanyakumari Temple and Vivekananda Jayanti at Vivekananda Memorial Rock. So Kanyakumari's history is a tapestry woven with tales of trade, pilgrim, colonialism, cultural exchange, making it fascinating destination for history enthusiasts and travel like me. हम होटल पहुंचे एंड हमारा टारगेट था टू एंजॉय द सनसेट एट द बीच। हम थोड़ी देर रेस्ट किए एंड देन वापस आ गए टू द बीच। हम कुछ टू रियली वॉक डाउन बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 5 o'clock. So me, Chandrani and our daughter, we started to walk down and also enjoy the sunset. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, वंडरफुल एक्सपीरियंस। So you can see the sunset happening right now and it is beautiful. Let me try and see if I can get both of them in the same frame. You are seeing the reflection of the sun going down is क्या तो बोले, is absolutely next level experience. ये जो experience था was wonderful. पता नहीं मैं I'm falling short of words, but that was our hotel. That's our hotel. We just walked down and we went until that. मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ. It is almost a kilometer. It's almost 800 or 900 meters, almost a kilometer. But बहुत अच्छा experience था of watching the sunset happening. थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग watched the evening view of कन्याकुमारी ये कुएं से and then हम लोग वापस आ गए अपने होटल में। छोटा सा glimpse of the sea view hotel. So ये होटल अच्छा ही होटल है। So that's about it. Then we took our dinner and we rested for the day. तो अगला दिन सुबह हम उठे and we wanted to visit the Vivekananda Rock, जो कि सबसे most visited जगह है। होटल से निकल के ही देखे कि एक लंबा सा लाइन है। ये जो लाइन है ये जाता है अपना फेरी घाट पे। लाइन से पहले यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं। आपके नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए एम्पल जगह है। एक चीज़ जो है कि ये लाइन काफ़ी लंबा हो जाता है। पंजाबी ढाबा भी है, तो अगर आप चाहो वन ऑफ द थिंग्स जो कि कर सकते हो कि जल्दी आ जाइए, आके लाइन पे खड़े हो जाइए। ये लाइन क्लियर होती है, 2 फेरी चलते हैं। ये रहा, हम एक बार अंदर घुस गए तो साइट सीइंग प्लेसेस है। लाइन जैसे मैंने बोला काफ़ी लंबा होता है एंड चलते चलते सामने में ऐसा रास्ता आया एंड देन हम अपना फेरी में चढ़ गए। फेरी का जो रास्ता है ये कुछ 15-20 मिनट्स का है। ऐसे टाइप फेरी है। अंदर में घुसे तो देखे हम लोगों को एक लाइफ जैकेट दे दिया गया। ऐसे सब कोई को लाइफ जैकेट बैठ के चलना पड़ता है। फेरी राइड तो बड़ा अच्छा है, बम्पी है लेकिन चारों तरफ से हवा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ये जो स्टैचू है ये तिरुवल्लुवर का स्टैचू है। तो आफ्टर 20-25 मिनट्स फेरी राइड, ब्यूटीफुल राइड, हम पहुँचे विवेकानंद रॉक में। विवेकानंद रॉक का ये पहला व्यू है। जैसे आप पहुँचते हो वहाँ पे आप देखोगे चप्पल रखने के लिए जगह। इस जगह का सिग्निफिकेंस ये है कि स्वामी विवेकानंदा ने वहाँ पे विजिट किया था ड्यूरिंग 24th, 25th and 26th December 1892 for deep meditation and enlightenment. This memorial rock was built in 1970 to commemorate Swami Vivekananda का visit and that is the key aspect of it. ये है मंदिर and ये है मेमोरियल के अंदर में हमको वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए कैमरा लेके जा नहीं पाए। बट अंदर में देयर इज़ अ मेडिटेशन हॉल, आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। ऊपर से द व्यू इज़ बहुत अच्छा है। मेमोरियल तो एकदम पिक्चरेस्क है। ये देखिए, ये है सनराइज कैलेंडर जिससे यू कैन ऑटोमेटिकली फाइंड द सनराइज टाइम। तो यहाँ का जो व्यू है मेस्मराइजिंग व्यू है।
It is the confluence of Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. तीनों महासागर यहाँ पे मीट होते हैं. थोड़ी देर में वहाँ पे बैठने के बाद then we proceeded to त्रिवेणी संगम में. संगम है यहाँ पे, कहते हैं कि जो यही जो जगह है जहाँ पे कि तीनों सागर, इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल का पानी एक जगह आता है. यहाँ पे कुछ कल बिलीफ है कि अगर वहाँ पे आप नहाओ, इफ़ यू टेक बाथ देन ऑल योर सिंस गेट ड्रॉन. यू नो, हम तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, बट आई सॉ लॉट ऑफ पीपल देयर. थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद देन वी सॉ. यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं जो कि मुझे दिखा नहीं. कहते हैं कि यहाँ पे तीनों ओशन के वाटर्स मिलते हैं एंड देयर आर 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ द ओशन. मुझे तो वैसा दिखा नहीं. इट वाज अ क्वाइट ब्राइट सनी डे, बट यस, दिस इज हाउ इट वाज. ये सब विजिट करने के बाद वी स्टार्टेड फॉर आवर नेक्स्ट जर्नी. हमारा नेक्स्ट जर्नी वाज टू कोवलम फ्रॉम कन्याकुमारी. बट हम कोवलम के रास्ता जाने से पहले दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कन्याकुमारी टाउन का विजिट. देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, कन्याकुमारी टाउन एक छोटा सा टाउन है, लेकिन काफ़ी क्लीन है. इट इज़ वेल डिसिप्लिन्ड. वहाँ पे बहुत टूरिस्ट्स हैं, बहुत ही टूरिस्ट्स हैं. बट अगर आप ड्राइव करके जाओ, यू विल नॉट फाइंड डिफ़िकल्टी इन पार्किंग. एटलीस्ट हमें तो नहीं लगा. ये जो चौक है, दिस चौक वॉज वेरी ब्यूटिफुल चौक. यू ऑल्सो हैव अ चर्च देयर टू विजिट. हम लोगों ने चर्च जाने का टाइम नहीं मिला, बट दिस इज़ हाउ हमारा डे वॉज. थोड़ी देर वहाँ पे रुके. वी हैड अ लंच एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ. वी ड्रोव पास्ट कन्याकुमारी लाइट हाउस, जो कि आप लेफ्ट में देख सकते हो. हमारे पास टाइम नहीं था, बट दिस इज़ अ स्मॉल चिल्ड्रंस पार्क जो कि आप प्लान कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. द रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सामने जैसे हम जा रहे हैं, एकदम ऑन द साइड यू हैव द सी. सो वेरी सीनिक ड्राइव. थोड़ी देर जाने के बाद ये सीनिक ड्राइव हम एंजॉय करने के बाद चर्च भी देखे. हम चर्च में जाने का हमको टाइम नहीं हुआ था. हम लोगों ने कोयम्बतूर में एक बढ़िया सा चर्च गए थे, सेंट माइकल्स चर्च. अगर आपने मेरा कोयम्बतूर का वीडियो एंड चर्च का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए. मैं आपको थंबनेल ऊपर दे दे रहा हूँ. सो हम स्ट्रेट निकल गए टुवर्ड पुअर. द रास्ता वॉज वेरी ब्यूटिफुल. इट वॉज अ सिंगल लेन, लेकिन रोड का कंडीशन बहुत बढ़िया है. ड्राइविंग इज़ एब्सोल्युटली अ प्लेजर. कई बार हम लोगों ने क्या किया, अपना विंडो को नीचे उतार लिया एंड वी एंजॉयड द वेदर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If I have to summarize to all of you all, कन्याकुमारी जाने के लिए I think best is to plan for 2 days. Day 1 is when you try to reach Kanyakumari. You see the sunset. अगला दिन you get up, take the sunrise view, which is mesmerizing, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है. And then विवेकानंद रॉक, go to संगम. अगर आप चर्च जाना चाहते हो, there are beautiful churches. You can visit the church, and then you can wind up by the evening and move to your next destination. So that's all for this video. I hope आपको कन्याकुमारी का ग्लिम्स मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दिखा पाया. कन्याकुमारी ब्यूटीफुल टाउन, बहुत अच्छा जगह है. एंड बिकॉज इट इज़ द एंड ऑफ द सदर्न एंड ऑफ इंडिया, इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. Hope you have enjoyed this video. So thanks very much for your time. Please do share your comment. If you have not subscribed, please do subscribe. That will be a big help and encouragement. Once again, thank you. Stay safe, stay happy. Bye-bye.